Hello everyone, I welcome you all once again to my online classes and let me directly deep dive into the topic. As you all know कि हमने Alexander Pope को शुरू किया है and we are done with the introductory part of Alexander Pope alongside one major work that is uploaded on my YouTube channel, and that work is most important work from the perspective of examination. That work is Essay on Criticism 1711 जो हमने पहले डील कर लिया है, उस वर्क को वहाँ पे जाके ज़रूर देखें. So आज की क्लास में we are going to deal with some important works, I mean a couple of works written by Alexander Pope. First is the Dunciad, very important. The Dunciad work is most important work and most frequent asked work in NTA UGC NET or any examination associated with English, all right? So first of all, अगर हम इसके यॉनर की बात करें, it's a mock heroic poem, right? It's a mock heroic poem. It's a mock heroic poem, all right? Guys, the large part of Dunciad is written in iambic pentameter. It is very important. Generally, it is a mock heroic poem, but the large part of Dunciad is written in iambic pentameter. Iambic pentameter ये मीटर्स का पार्ट है और मीटर्स को हम सेपरेटली डील करेंगे, बट जो भी आप मीटर्स की बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मीटर्स के अंदर कुछ प्राइमरी मीटर्स हैं, जैसे अयाम्बिक है, ट्रोके है, एनापेस्ट है, कोरम्बस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑलराइट. इन सारे मीटर्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी अयाम्बिक पेंटामीटर की थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि अयाम्बिक पेंटामीटर इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू सिलेबल्स, ऑलराइट. फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड and it is followed by unstressed. Okay, so iambic pentameter के अंदर दो syllables हैं, पहला stressed है और दूसरा unstressed है, इसको याद रखेंगे. Dunciad जो अधिकतर पार्ट है, the major or the large part of Dunciad is written in iambic pentameter. This fact is very important. Second examination fact associated with Dunciad is that it was published 4 times, all right. It was published 4 times. Okay, so before dealing with the publication dates, this work was published for the first time as an anonymous work. It was published as an anonymous work. As you all know, being a student of literature, you all should have a clear-cut acquaintance with anonymous works. Anonymous works are the works जिनके ऑथरशिप के बारे में हम नहीं जानते हैं, कि ऐसा वर्क जहाँ पे ऑथरशिप की आइडेंटिटी, ऑथरशिप का पता नहीं होता है, दैट इज़ एनोनिमस वर्क. एज यू नो, जो हमारा अर्लीस्ट लिटरेचर था दैट वाज ओरल एंड एनोनिमस लिटरेचर. लाइकवाइज डनशार्ड की जो पब्लिकेशंस, फर्स्ट पब्लिकेशंस, आई मीन इनिशियल पब्लिकेशंस जो थी वो एनोनिमस थी, राइट, कोई ऑथरशिप का पता नहीं था. अब मैंने आपसे पहले बात करी कि द डनशार्ड रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, इट वाज पब्लिश्ड 4 टाइम्स. फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन 1728, then 1729, then 1742, and for the last time it was published in 1473. All right, these publication dates are very important. There might be a question in exam that for the first time when Dunciad was published and for the last time when it was published. So the first time it was published in 1728 and for the last time it was published in 1743. All right. So next important detail about Dunciad is that, as we all know, कि अलेक्जेंडर पोप ने बहुत सारे वर्क्स को ट्रांसलेट भी करा है और बहुत सारे वर्क्स को एडिट भी करा था. जैसे कि लास्ट ईयर के जेके सेट में क्वेश्चन पूछा था कि अलेक्जेंडर पोप ने होमर के कौन से वर्क को एडिट किया है, तो ओडिसी इज बेसिकली इट वाज ट्रांसलेटेड बाय अलेक्जेंडर पोप. ऑल राइट, यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप इस वर्क के अंदर जो रेफरेंस दिया गया है, पोप एडिटेड some works of Shakespeare.
पोप ने कुछ शेक्सपियर के वर्क्स को एडिट किया था, और एडिट करने के बाद एज यू ऑल नो डनशार्ड वर्क के अंदर पोप ने अपने दो लिटरेरी राइवल्स को सटायर किया है. फर्स्ट इज लेविस थियोबाल्ड एंड सेकंड इज कॉली शिबर. ऑलराइट. जब अलेक्जेंडर पोप ने शेक्सपियर के कुछ वर्क्स को पब्लिश किया, ट्रांसलेट किया, एडिट किया, तो ये लियोस थियोबाल्ड जो थे, ही वॉज मेनली नोन फॉर अ वर्क शेक्सपियर रीस्टोर्ड. याद रखेंगे, शेक्सपियर रीस्टोर्ड वॉज एडिटेड बाय लेविस थियोबाल्ड. ऑलराइट. लेविस थियोबाल्ड ने शेक्सपियर रीस्टोर्ड के अंदर अलेक्जेंडर पोप को क्रिटिसाइज करा था, और फिर इसके राइवल में, इसके कंपटीशन में अलेक्जेंडर पोप ने द डनशार्ड लिखा, और डनशार्ड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल लेविस थियोबाल्ड को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और कॉली शिबर जो हैं, ही इज़ बेसिकली अ पोइट लॉरिएट. पोइट लॉरिएट आपके बारे में मैंने वीडियो अपलोड करी है, वो आप देख सकते हैं. कॉली शिबर जो थे, ही वॉज अ पोइट लॉरिएट, एंड इन्होंने भी 1743 के अंदर अलेक्जेंडर पोप को क्रिटिसाइज किया था. और जब अलेक्जेंडर पोप ने 1743 के अंदर ये अपने आइडेंटिटी को रिवील करा कि डनशार्ड जो है, इट्स माई राइटिंग, इट्स नो मोर एनोनिमस नाउ, तो तब जाके वहाँ पे कॉली शिबर को भी अलेक्जेंडर पोप ने क्रिटिसाइज किया था. इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है गाइज. सिंपली आपको ये याद रखना है कि इस वर्क के अंदर, डनशार्ड के अंदर अलेक्जेंडर पोप ने लियोस थियोबाल्ड और कॉली शिबर को क्रिटिसाइज किया है. ऑलराइट. और इस वर्क के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि लियोस थियोबाल्ड जो हैं, लेविस थियोबाल्ड वॉज कंसिडर्ड एज द सन ऑफ गॉडेस डलनेस. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेविस थियोबाल्ड, he was considered as a son of goddess dullness. All right. So these are certain facts associated with डनशार्ड. ऑल राइट. डनशार्ड इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान में रखेंगे इसको. और इसके अंदर जो भी डिटेल मैंने आपसे बात करी कि इसका जो मेजर पार्ट है वो यम्बिक पेंटामीटर में है, और जनरली ये एक मॉक हीरोइक पोम है. इसकी पब्लिकेशन डेट्स जो 4 बार पब्लिश हुआ है उसको याद रखेंगे. किस किस राइटर को, किस किस लिटरेरी राइवल को अलेक्जेंडर पोप ने इस वर्क के अंदर क्रिटिसाइज़ किया है. दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट. अब इस वर्क के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं गाइज, वो कोट्स आपको मालूम होनी चाहिए. अगर कोट्स की बात करें तो कोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ. एज यू नो, कोट्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, सो आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ इंटरनेट. फर्स्ट कोट जो इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ. दाई हैंड ग्रेट एनाक, दाई हैंड ग्रेट एनाक, let the curtain fall and the darkness buries all. This is very important quote mentioned in डनशार्ड, और ये कोट जो है वो बार बार एग्जाम में आई हुई है. नेक्स्ट कोट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट कोट इज while pensive poets pain wiggle keeps, while pensive poets pain wiggle keep sleepless themselves to give their readers sleep, all right.
सो ये दो इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं जो इस वर्क के अंदर मेंशन्ड हैं। बाकी जो कोट्स हैं उनको मैं एक एक करके शॉर्ट्स के अंदर डील करूँगा, आप वहाँ से उनको रिवाइज कर लेना। और कोट्स में से अभी तक एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ ये कोट पूछा गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है, बाकी कोट्स भी पूछी जा सकती हैं, वो हम शॉर्ट्स में डील करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्क जो आज हम क्लास में डील करेंगे दैट इज़ एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। The Epistle to Dr. Arbuthnot is a work, and this work is considered as most autobiographical work written by Alexander Pope. All right, the Epistle to Dr. Arbuthnot. All right, publication date is 1735. Okay. एपिस्टल का मतलब होता है लेटर। जैसे कि आपके लिटरेचर के अंदर कुछ एपिस्टलरी नॉवेल्स हैं। एपिस्टलरी नॉवेल्स का मतलब होता है ऐसी नॉवेल्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेटर एक्सचेंज हुआ हो। ऑलराइट, जैसे आपके पास पामेला जो है, पामेला इज़ मेजर एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टलरी नॉवेल एंड इट्स रिटन बाय रिचर्डसन। ऑलराइट, मैं एपिस्टलरी नॉवेल की बात कर रहा था। Let me directly come to the point. Epistle to Dr. Arbuthnot. This work was published in 1735. Epistle to Dr. Arbuthnot is considered as most autobiographical. Most autobiographical work written by Alexander Pope. All right. और आर्बुथनॉट जो है, दिस वर्क इज एड्रेस टू हिज फ्रेंड डॉक्टर आर्बुथनॉट। और एग्जाम के अंदर एक बार डॉक्टर आर्बुथनॉट का प्रोफेशन पूछा गया है। सो बाय प्रोफेशन ही वाज अ फिजिशियन। ऑलराइट, ही वाज अ डॉक्टर एज मेंशन्ड इन द टाइटल। ओके, सो डॉक्टर आर्बुथनॉट इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 419 लाइन्स, 419 लाइन्स इसके अंदर टोटल हैं। जैसे कि डनशार्ड के अंदर कॉली शिबर और ल्यूइस थियोबाल्ड को क्रिटिसाइज़ किया है, लाइकवाइज डॉक्टर आर्बुथनॉट के अंदर भी अलेक्जेंडर पोप ने दो राइटर्स को क्रिटिसाइज़ किया है। दो राइटर्स का नाम आपको बता रहा हूँ। व्हाट्स द नेम ऑफ द राइटर्स? फर्स्ट इज जोसेफ एडिसन, and second one is John Harvey. All right. Joseph Addison is considered in this work as Atticus, and John Harvey is considered as Sporus. And Sporus is the sexuality of Sporus is in ambiguity. He might be a homosexual or bisexual character in this work. So ये याद रखेंगे, he belongs to LGBT community. क्वेश्चन बन सकता है गाइज। सो जोसेफ एडिसन और जॉन हॉवे को एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट में अलेक्जेंडर पोप ने क्रिटिसाइज़ करा है गाइज। इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी डील करे हैं। वो फ्रेजेस क्या हैं? फर्स्ट फ्रेज इज डैम विद फेंट फ्रेज। First phrase is damn with faint praise, and second phrase is who breaks butterfly upon the wheel. Who breaks butterfly upon the wheels. These are two important quotes mentioned in the work Epistle to Dr. Arbuthnot by Alexander Pope. Next important quote जो है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। ओ लेट मी लीव माई ओन, ओ लेट मी लीव माई ओन, ओ लेट मी लीव माई ओन and die so too, and
die so too. Maintain a poet's dignity and ease. Maintain a poet's dignity and ease. And see what friends and see what friends and read what books I please and read what books I please. All right, so guys, this was all about Dunciad and Epistle to Dr. Arbuthnot. ये दोनों एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. जो भी डिटेल आपको क्लास में डील करवाई उसको अच्छे से रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, और जहाँ से भी आपको अच्छा मटेरियल मिलता है ट्राई टू ग्रैब इट. ऑल राइट, एंड प्रेज एंड अप्रिशिएट माई वर्क ऑल्सो. डोंट सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. थैंक यू.